Hello, my dear friends, my dear viewers, my dear students, my dear learners. Welcome to my YouTube channel Talking English. I hope you all are well. In today's video, I am going to share my thoughts, my views, my experience, my knowledge to all of you that will definitely help you learn how to speak English. My dear friends, to speak English, you need to practice every day. If you are alone, no problem. If you have partner, that's okay. But if you have partner, that is more useful, more helpful, and you can get more advantage from them. Okay, if you have no partner, okay, I know that in India, in a village side, in rural area, there will not be any partner. Okay, if you are interested in spite of not having any partner, you can learn speaking English. Okay, so my dear friends, today I am going to share a story by reading from the book and making you understand by translating it in Hindi how to read and how to speak, in which way to read and in which way you have to remember it, word by word, sentence by sentence, where to, and after understanding fully, you just keep it in your mind, keep it in your brain, you just remember and say. In this way, if you keep on reading every day and memorizing little bit 10 sentences, then read those 10 sentences for 1 day, 2 days, 3 days, depend upon your capacity, depend upon your capability. If you think that okay, in 2 or 3 days I can remember and memorize it, keep it in my mind, then is okay. If it can take more than 5 days, okay, you keep on reading for 5 days and memorizing it. After that, then go to the next paragraph, next lines, try to understand this way. Okay, so let me start. I'm going to read one story. Sparrows. Nina and the baby sparrows. Okay, my dear friends, you know the Nina is a child, a girl child, okay, small child, maybe she is a student. And the baby sparrows means small child. Sparrow is a bird, okay, small bird is sparrow. You can see, in a rural area, in a house, in its small trees, and in a jungle, there may be its nest, and there are sparrows live on that nest. Okay, sparrows live in that nest. Okay, so there are baby sparrows, small sparrows. Okay, they are small birds, the kids of the birds. It's called baby birds. Okay, baby sparrows. नीना एक बच्ची का नाम होता है, एंड और द बेबी स्पैरोस, छोटे स्पैरोस, छोटे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, स्पैरोस एक टाइप का बच्चे, चिड़िया का एक टाइप का चिड़िया होता है स्पैरोस. ओके, बेबी स्पैरोस मीन्स छोटे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बोलते हैं. There was great joy in Nina's house. There was a great joy in Nina's house. Okay, I am telling you the story part by part, with small words by word and sentence by sentence. Okay, small words I am just reading and telling you. You just make you understand. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में
जॉय था, खुश था, खुशी का माहौल था। इसका मतलब है वहाँ पे देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी था। जॉय मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। ओके। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीनाज आंट, ओके, नीनाज आंट, नीना का जो आंटी है, आंट, ओके, आंट होता है, हम लोग आंटी बोलते हैं, उनका आंट, ओके, was getting married, इट्स इन द पास्ट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म में दिया गया है, ओके, पास्ट फॉर्म में बताते हैं। नीनाज आंट, नीना का जो आंटी है वो उनका शादी होने वाला है, शादी का काम चल रहा है, शादी का प्रोसेस चल रहा है। ओके, शी वाज गेटिंग मैरिड हो रहा था, उनका शादी हो रहा था। नीना, हर फादर, मदर एंड little brother all were going to Delhi for the wedding. Okay, Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding. शादी के लिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं तो शादी के लिए नीना, उसकी पापा, मम्मी और उसकी जो ब्रदर है, छोटे भाई सब मिलके दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए ये लोग सब दिल्ली जा रहे थे। ओके, सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म्ड, हाउ द सेंटेंस इज मेड। ओके, हम लोग पहले बोलते हैं शादी के लिए नीना, उसकी फादर, मदर, उसकी मम्मी, उसकी पापा, उसकी भाई दिल्ली जा रहे थे। बट व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट द वर्ब, द एक्शन थिंग वी हैव टू say first. We have to say action work first, means verb. We have to use verb first. But in Hindi, the doing thing, the action thing we say later. Okay, first we say the objective part. This is called objective part, and subject part is said later. Okay, suppose when is, so everyone was happy. सभी ने खुश था। was means था, सभी ने खुश था। ओके, her mother took her to the market to buy new dress. her mother means Nina's mother, नीना की मम्मी। her mother took her to the market. took कहाँ से, टेक से आया है। टेक मीन्स लेना। यहाँ पे जब टुक हर टू होता है ना, तो टुक हर टू, उसको लेके गया, उसके मम्मी, नीना की मम्मी नीना को मार्केट लेके गया। ओके, टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। टू बाय किसके लिए गया, टू बाय मीन्स टू के साथ बाय लग गया। बाय मीन्स खरीदना। टू के साथ जब बाय लगता है, इसका मतलब होता है खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, न्यू ड्रेस। ओके, न्यू ड्रेस खरीदने के लिए उनको मार्केट लेके गया। ओके, हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस। देन व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा, मम्मी ने पूछा। किसकी मम्मी, नीना की मम्मी। व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो। यहाँ पे वुड क्यों आया है, वुड का मतलब अब धीरे धीरे आप सीखोगे, एक दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, वुड क्यों आया है, वुड का मतलब होता है पोलाइटली पूछना, किसी चीज को पोलाइटली एकदम प्यार से पूछने के लिए वुड यूज होता है। सो हियर व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो, मम्मी ने पूछा।
आई डोंट वांट एनी ड्रेस, आई डोंट वांट एनी ड्रेस, आई डोंट वांट मीन्स मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी ड्रेस, कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। ओके, हु सेड? नीना सेड, सेड नीना, सेड नीना। ओके, सलवार कमीज देन, सलवार कमीज देन, उसकी मम्मी ने बोला, पूछी, मतलब सलवार कमीज, तो सलवार कमीज, तो सलवार कमीज जैसे हम लोग बोलते, तो सलवार कमीज। तो यहाँ पे देन का मतलब होता है तो उसके बाद, ऐसे बोलते हैं हम लोग देन, उसके बाद। बट यहाँ पे देन का मतलब होता है तो सलवार कमीज। मतलब अगर किसी कोई भी कलर वो पूछ रहा था, जो कलर उसको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा कलर पसंद करोगे करके जब पूछे उसके मम्मी, तो उसने बोले कि आई डोंट वांट एनी ड्रेस, मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। नीना सेड, नीना ने बोला। ओके, सो सलवार कमीज देन, तब उसको मम्मी ने बोले, तो सलवार कमीज, फिर सलवार कमीज, फिर सलवार कमीज, तो सलवार कमीज, इस टाइप का मीनिंग आएगा। नीना सुक हर हेड, सुक हर हेड, सुक किया। ओके, मतलब सर हिलाया, मना किया। यहाँ पे सुक, शेक से सुक आया, शेक मतलब हिलाना, हिला, माथा मतलब मुंडी हिलाना, सर हिलाना। शेक मीन्स हिलाना। ओके, सो यहाँ पे शेक से सुक आया है पास्ट फॉर्म में। ओके, नीना सुक हर हेड, उसने उसका मुंडी हिलाई, मतलब मना की, नहीं चाहिए उसे, सलवार कमीज भी नहीं चाहिए। ओके, what about those lovely white shoes you saw last week? What about those lovely shoes you saw last week? Asked mother. I don't want those shoes either. उसके मम्मी ने बोले, What about those lovely white shoes you saw last week? इसका मीनिंग क्या होता है? What about मतलब उसके बारे में क्या, किसके बारे में? What about, उसके बारे में क्या? What about those lovely white shoes, तुमने जो white shoes, सुंदर, lovely मीन्स सुंदर होता है, white मीन्स white, सफ़ेद, तुमने जो सफ़ेद शूज देखे थे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में जो वाइट कलर का लवली शूज देखे थे, उसके बारे में क्या? ओके, हम हिंदी में ऐसे बोलते, तुमने जो लास्ट वीक वाइट लवली शूज, सुंदर सा सफ़ेद कलर के शूज देखे थे, उसके बारे में क्या, मतलब क्या ख्याल है, क्या तुम उसको चाहते हो? ऐसे ही पूछ रहे उसकी मम्मी। सो इट इज सेड लाइक दिस, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक? यू सॉ लास्ट वीक एक पार्ट है सेंटेंस का, तुमने लास्ट वीक जो वाइट कलर का सुंदर सा शूज देखे हो, उसके बारे में क्या? आई डोंट वांट दोज शूज आइदर, आई डोंट वांट दोज आइदर। ओके, आई डोंट वांट मीन्स मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए, दोज मीन्स उन सब जिसके बारे में तू बोल रहे हो, जो शूज के बारे में बोल रहे हो, दोज, दिस, दैट से दोज होता है। दैट मीन्स एक सिंगल चीज, दोज मीन्स एक से ज़्यादा। ओके, अगर दो जूते के बारे में बोलते हैं, if they are talking about two shoes, one pair of shoes means two shoes, so here those will be used. So I don't want those either. See my dear friend, either का बहुत मीनिंग होता है। either means, मैं अभी ज़्यादा मीनिंग डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे जो मीनिंग है उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, either means ये भी, those either, ये भी नहीं चाहिए, वो सब भी नहीं चाहिए, इसका मतलब होता है आई डोंट वांट दोज आइदर, वो सब भी मुझे नहीं चाहिए, उन सब भी मुझे नहीं चाहिए। ओके,
थैंक यू मदर, धन्यवाद मदर, शुक्रिया. ओके. Nina's mother was upset, but he said nothing. Oh, sorry, she said nothing. Nina's mother was upset, but she says nothing. ये जो वर्ड है सी क्यों आता है? जब वहाँ पे गर्ल होता है, लेडीज होता है, जब फीमेल होता है तब ही नहीं होता है, सी होता है. You have to remember it, okay? And this thing will be stored in your mind, in your brain, if you practice it again and again. If you don't practice, then in place of she, he would come in your mind, and you start saying he. Okay, so these all are depends upon your practice. Nina's mother was upset. नीना का जो मम्मी है वो अपसेट थी. अपसेट मीन्स ऑफ कोर्स यू नो, वेरी अपसेट, चिंता में थी, टेंशन में थी. ओके, क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रही, इसके कारण वो अपसेट थी. बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. अपसेट थी लेकिन कुछ नहीं कहा, टेंशन में थी, क्या हो गया. ओके. दे वेंट बैक होम एंड हैव लंच. दे वेंट बैक होम, दे घर वापस गया. वेंट बैक, गो से वेंट होता है, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स वर्ब का पास्ट फॉर्म. ओके, सो उन लोगों ने घर गया, घर वापस गया. ओके, मैं अभी ज़्यादा ग्रामर पे नहीं जाऊंगा. ग्रामर पे जाएंगे तो ग्रामर पे ही कंसंट्रेशन रहेगा, मेन फोकस ग्रामर में रहेगा. अपन को ग्रामर के साथ साथ सेंटेंस बनाना सीखना है, मीनिंग जानना है, मेमोराइज करना है और ग्रामर भी सीखना है. दे वेंट बैक होम एंड हैव लंच. उन दोनों ने, तो मम्मी और तो बेटी नीना और उनकी मम्मी घर वापस गया. उसके बाद खाना खाया. ओके, खाना खा लेते हैं, उनके बाद खाना खाते. देन हर मदर केम एंड सैट नियर नीना. ओके, मदर केम एंड सैट नियर नीना. मम्मी ने आया. ओके, लंच के बाद, आफ्टर लंच कर लिए थे. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. ओके, what is it, my child asked mother. Okay, what is it child, she asked. किसने कहा? मम्मी ने कहा. किसकी मम्मी? नीना की मम्मी. नीना's मम्मी asked. Okay, what is it, ये क्या है? चाइल्ड, बच्चों ये क्या है? बच्चे ये क्या है? ओके, मम्मी ने पूछा ये क्या है? शी आस्क्ड. ओके, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? व्हाई डिड यू से, तुमने क्यों ना बोला टू एवरीथिंग, हर चीज में तुमने क्यों ना बोला बेटे? ऐसे पूछते ना, हर चीज में तुम क्यों ना बोलते हो बेटे? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो I have read this the story. I'm trying to understand. I try to make you understand. Okay, try to understand the story and keep remembering. And how to speak in English, you just try. Without conversation is not possible, my dear friends. And if you want to learn alone, then this is the only process. You keep saying, keep blabbering. Don't be hesitated, don't feel shy. You keep saying anything, any mistake, any wrong. You don't you don't think anything that someone in front of me, behind me will scold me, will laugh at me. Laughing at you, the concept laughing at you is a big problem. Okay, you never think of that. Okay, thank you very much for this video.
Keep watching, subscribe my channel. Thank you very much.